very difficult to stay away from him, and especially if he's traveling. So he's very bad at talking at calls. And now with Bhiyan, शायद उसका भी वही स्टेटस है कि वो भी भावेश के बिना रह नहीं सकता. He wakes up every night just searching for where is Papa. So this is something that I've never told. तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं रिद्धि को बोलूँ कि बहुत बार रिद्धि को लगता होगा कि वो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता होगा कि वो मेरे शैडो में है, लेकिन वो मेरी सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर टोल्ड. Okay, hi everybody. You are watching the Wedlocks. My name is RJ Raj, and today with me is the youngest and the most powerful couple in the city of tigers, in the city of oranges, and in the city of BNI. I welcome, some people call them the BNI couple. I call them Bhavesh and Riddhi Telramani. Hi. Hello. Hello, hi Raj. How are you? Great. Good to see you, Riddhi, and good to see you, Bhavesh. And good to see now not just Bhavesh and Riddhi as young lovey-doveys, but also now mummy daddies. So after Vihan came, what changed? A lot of things changed. You can rather ask क्या चेंज नहीं हुआ. क्या चेंज नहीं हुआ? क्या पार्टीज चेंज नहीं हुई. पार्टीज चेंज नहीं हुई और वो हम दोनों के बीच में नहीं सोता है, साइड में सोता है, तो वो चेंज नहीं हुआ. यस, बस ये दो चीजें छोड़ के बाकी सब चेंज हो गया. So now who's napping in the night? both of us. वो तो बस. He also actually. Okay. So things are as normal as every couple have in their life between both of you. You're very normal couple. Yes, very much. This is what you call yourself, or the world calls you. We call ourselves. But then the world calls you a very busy and BNI couple. How do you react to that when they call you a BNI couple? This is, I think, an opportunity that we got this opportunity of starting BNI. तो अच्छा ही लगता है. No, but when I say people call you a BNI couple, they also know that you both met because of BNI. Is that true? No. No, we met in BNI. And then we decided that we'll do BNI together. Okay. So how did it happen? Like, you met Riddhi or Riddhi met you? How did it happen? Wow. So would you like to share or should I share? Please go ahead. So I with my friend Aarti, we both used to do a lot of social events like Free Store and Conference, Karma Kitchen. So the first Karma Kitchen that we organized, in that I got a call from a girl, Karishma Kittu, and she said that I would also like to volunteer and one of my friend would also like to volunteer, and we said okay fine, we anyway have a lot of volunteers, but come more the merrier. Yeah. So I introduced Karishma to Aarti because I was not in Nagpur at that time, and then the other friend of Karishma was Bhavesh. Okay. So he attended the first meeting, and then in the second meeting we met at Aarti's place, and I think Bhavesh will describe what he thought about me because that's what he thinks is very interesting according to him. And for me, I thought just another guy, it's okay, we were in the lift together. And Bhavesh, if you'd like to share your views about me. Yeah, so for me, the reason of volunteering in this kind of an event was very different. हम लोग 11 दोस्तों का ग्रुप था. जब मैं बाहर था पढ़ाई के लिए, वो सब नागपुर में थे और सारे इंजीनियर्स हैं. तो जब मैं नागपुर वापस आया तो वो सब बाहर चले गए क्योंकि इंजीनियर्स को यहाँ नौकरी मिलती नहीं है. So I was all alone in those XYZ years. तो करिश्मा ने मुझे बोला कि let's go somewhere, you're going to find similar mindset people. And yes, this is how we thought that we'll volunteer in Karma Kitchen. And हाँ, पहले मीटिंग में रिद्धि नहीं थी, she was in Bombay,
as far as I remember. And the day she was in Bombay, the day I attended the first meeting of Karma Kitchen, she was attending BNI meeting in Bombay. और इन सब में फिर मैंने जब रिद्धि को पहली बार देखा, वी आर इन दैट एज राइट, हम उस एज में होते हैं, वी जज कि हमें किसके साथ दोस्ती आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है. द फर्स्ट लुक दैट वाज नॉट रियली गुड. रिद्धि वाज वेयरिंग अ टॉर्न जीन्स और फटी जीन्स तो उस एज में सब पहनते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फटी हुई थी. मैं हॉस्टल में था, मैं भी इससे ज़्यादा साफ पहनता था जीन्स जितनी ख़राब थी. तो देयर वाज अ सटल मैसेज टू द माइंड कि दूर रहना है ना. So this is how it started. Yeah, if you want to. Quickly, I'll just share. So then in Karma Kitchen, what I really liked about Bhavesh was that I was washing utensils with one of my other friend, and उसकी ड्रेस ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसको बोला तू जा, मैं अकेले कर लूँगी. सारे ऑलमोस्ट हर एक वॉलंटियर आके वहाँ पे बर्तन रख रहे थे, बट किसी ने खुद से होके बोला नहीं. एंड द इवेंट इज सच कि मैं भी किसी को नहीं बोलती, मतलब कोई नहीं कर रहा है, इट्स ओके, आई विल डू इट. तो भावेश वॉज दी ओनली पर्सन हु केम, एंड व्हेन ही केम देयर टू कीप द यूटेंसिल्स, ही सेड कि मैं कुछ हेल्प करूँ. मैं बोला बिल्कुल. सो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि अगर इसमें इतना ईगो नहीं है कि लोगों के सामने, बिकॉज वो वेन्यू के एकदम लग के था, एवरीवन कुड सी हु इज़ वॉशिंग एंड बैक एंड या ऐसे कुछ नहीं. तो अगर इसमें इतना ईगो नहीं है कि लोगों के सामने लोगों के झूठे बर्तन धोना, तो वो क्वालिटी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टच कर गई भावेश की. तो क्या वो अभी भी कंटिन्यूड है? पर बर्तन धोना, इम्प्रेस करना नहीं, वो तो जिंदगी का पार्ट है. like that. So, Yeah. I remember हम लोग चाय पी रहे थे रिद्धि और मैं किसी फ्रेंड के यहाँ, और फिर जैसे ही चाय ख़त्म होके हमने रखी, तो मैंने रिद्धि को बोला कि रिद्धि मैं बर्तन ये धो के आता हूँ. उसने बोली हम दूसरे के घर पे हैं, बर्तन वहीं रख. On a lighter note, yes, in that same time, उसी समय की बात है, रिद्धि को मेरे बारे में वो चीज़ अच्छी लगी. और मुझे एक कॉन्वर्जेशन में मैंने रिद्धि को बोला, यार इफ़ योर डैड इज़ इनटू कंस्ट्रक्शन, आई एम एन आर्किटेक्ट, तो यार तुम्हारे डैड तो बड़े काम किए हैं. रिद्धि ने बोली डैड का छोड़ो, मैं भी बड़ी काम की हूँ. सो आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस इन हर. सो दैट वाज दैट couple of minutes I think decided what is going to be our fate. But then when you both met, वो जो पूरा का पूरा वाक्य था, उसके बाद आफ्टर दैट आगे कैसी बड़ी बात? वहाँ तक ठीक है, इम्प्रेस हो गए आप, इम्प्रेस हो गए कि ये बड़ी बेबाक हैं, बहुत सीधी बात कर देती हैं, खुल के बात कर देती हैं, आपको ये पसंद आ गई कि ये बर्तन मान लेता है. or you like the you know the gesture, the attitude that you know this guy is well behaved and you know nice, you were impressed. Yes. But आगे फिर क्या हुआ? So we both were in a stage of life जहाँ पे हमें settle होना था, in the sense not like शादी and all, but we were both struggling in our careers. I would say struggling because मैं तब CA practice कर रही थी. एंड तो हमारी काफ़ी दिनों तक कुछ ऐसे बात नहीं हुई थी. देन आई रिमेंबर्ड कि भावेश ने तब फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक की थी, तो मैंने जस्ट एक मैसेज डाला फ़ोटोज़ के लिए. तो उस वक्त तक एक्सचेंज हो गए थे नंबर्स, तो हम साथ में ग्रुप में थे, तो एनीवे वी हैड आवर नंबर्स. एंड ही वाज वेरी फेमस इन द ग्रुप बिकॉज ही यूज्ड टू ऑलवेज राइट आई एम आर्किटेक्ट भावेश, AR भावेश. सो एवरीवन यूज्ड टू जस्ट टीज हिम कि ओके ये थोड़ा शाइनिंग है. हाँ, मतलब अपने आप को आगे दिखाने के लिए रहते ही. तो वो पता ही था कि उनका नंबर. तो एनीवे तो हमारी ज़्यादा कुछ ऐसे बात नहीं हुई. फिर हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीने बाद वी अगेन मेट. वी ऑल आई थिंक वी वर 36 ऑफ वॉलंटियर्स हु वेंट टू उमरेड कारंडला. तो वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, बट हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऐसे वो जो रोमांटिक कपल्स और एंड यू नो मी
या यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस. विहान हो गया ये इस पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ना जी. You know, things just were moving very slow वैसे, and भावेश would like to then add कैसे क्या, क्योंकि भावेश की तरफ से बात थोड़ी जल्दी आगे बढ़ी. ये वन साइड लव स्टोरी है क्या पूरी? भावेश has a lot to add, so please add भावेश. नथिंग. जो रेगुलर होता है, लड़की के घर पे माँ को बड़ा टेंशन होता है, बाप को बड़ा टेंशन होता है कि बेटी इतने उसकी उम्र हो गई है शादी की, लोग पूछ रहे हैं, रिश्तेदार पूछ रहे हैं, सीए बन गई है और क्या कर लेगी. तो वो सब चल रहा था. इन बिटवीन मैं ठहरा सिंधी फैमिली से, तो हम तो उठते ही 10 बजे. हमने तो सूरज नहीं देखा होता है कभी. सही बात. सूरज हमको ढूंढने आता है. सूरज पॉपुलेशन काउंटिंग में दिखते ही नहीं हम. तो एक दिन सुबह 6:45 बजे मुझे फ़ोन आता है रिद्धि का कि मैंने मम्मी को बता दी हूँ. आई सेड वेरी नाइस, लेकिन ये कोई समय नहीं है मुझे बताने का. कॉल मी आफ्टर 10. तो बची हुई नींद तो गई, लेकिन सो दिस इज हाउ रिद्धि इज. रिद्धि उस समय जो लगा वो हमने कर लिया. अब बताएं, जब म्यूचुअली अग्री हो गई तब फैमिली को इन्होंने तो बोला मैंने मम्मी को बता दिया, उसके बाद कैसा हुआ? मुझे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इतनी रोमांटिक नहीं है, तो मुझे वो एक चीज़ जो मुझे हमेशा से पता थी और लगती थी कि प्यार, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें 5-10 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, बट ज़िंदगी अगर किसी के साथ बितानी है तो 5-10 साल बाद क्या, you know, there should not be difference of opinions, and of course there will be difference of opinions, but बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए. तो वो जो भावेश ने कहा ना कि बहुत प्रैक्टिकली हमने, तो ऐसे हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई जिसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जिस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी है वो बहुत सिमिलर है और वो साथ में हो सकती है. तो हाउ प्रैक्टिकल रिद्धि इज, I can understand in a conversation now also. Every time she's saying we had a meeting, it was never a date. It was never a date. It was always a meeting. So I remember ऐसा रिद्धि ने मुझे बताई कि आज मैंने घर पे, जैसा उन्होंने बताया था कि मैंने घर पे बता दी हूँ और हमारे घर पे मीटिंग है. ठीक है, मैंने एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, फिर मैंने रिद्धि को बोला यार तुम्हारे ऑफिस में रहती हो कि घर में रहती हो? So that's a language probably she uses. हाँ, उस रिद्धि के लिए हर चीज़ मीटिंग ही होती है. हाँ, तो ऐसा. तो फिर घर पे मीटिंग जब हुई तब how did it? I mean, who you met her parents first, या पेरेंट्स लोगों ने आपस में मुलाकात की, या how did it go like? It took 8 months for my parents to first agree to meet him. Oh, 8 months. So with all the graphs going up and down. Okay. All that happened. Then my parents took some time. Okay, after 8 months. हाँ, हम भी तो लड़के वाले हैं भाई. So then how many months? I think 3 months. So after 11 months, finally there was a meeting. There happened a meeting where all the people were there in informal clothes. But then when it comes to you, Bhavesh, your family, how did they react? Frankly हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है. और मेरी बहन की भी शादी हुई, मेरी भी शादी हुई, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों में नहीं था. और रिद्धि के सामने बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ. तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर, जैसे आपने देखा ही हुआ है, यू बीन टू आवर हाउस एंड आवर पेरेंट्स आर वेरी कूल. और उन अभी बयान हो जाने के बाद भी अगर मैंने आपको बोला कि पार्टीज जो हैं वो चालू हैं, दैट इटसेल्फ इज टेलिंग अस हाउ सपोर्टिव आवर पेरेंट्स आर, बिकॉज वी हैव अ वेरी सोशल लाइफ. सो उन सब में दे वर वेरी सपोर्टिव. और टॉकिंग अबाउट मारवाड़ी फैमिली का डिसीजन, सो हमारे घर पे ऑलरेडी एक पंजाबी लड़की आई हुई है. तो उस चीज़ ने थोड़ा सा इस चीज़ को, हाँ, 50% एक्सेप्टेंस था. लेकिन किसी और के घर पे होना और मेरे घर पे होना, दोनों में फ़र्क होता है ना. तो जब उनके घर पे तो था, शायद पेरेंट्स ने कन्विंस किया होगा उनको. तो आपके कजिन्स में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया होगा.
हाँ कि एक बार जब जो यहाँ- बचे हुए हैं हाँ जो बचे वी आर ट्राइंग फॉर सम हाँ जर्मन और Right, बाकी So, but then what do you think, what was that thing in Riddhi which made your family a little more comfortable and, you know, getting inclined a little towards her? Here I would really want to mention this. बहुत क्लियर थी रिद्धि कि जब शादी हो जाएगी पहले 3 महीने में ऑफिस नहीं आऊँगी. आई विल बी विथ माई मदर इन लॉ, है ना. तो इनका जो वो 3 महीने का इंटरेक्शन था, मॉम इज़ अ टीचर, तो उन वेकेशन पीरियड का टाइम था, तो वो भी घर पे थी, रिद्धि भी घर पे थी, और जो इन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया एंड दे वर वेरी क्लियर. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि दोनों ने बहुत एफर्ट्स लिए एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और उसका मिडवे निकालने के लिए. बहुत बार मिडवे निकालना होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि शादी के बाद लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है, बट लड़के के साइड पूरे फैमिली की लाइफ चेंज होती है. बिकॉज एवरीबडी एट दीज डेज, इस टाइम पे तो एवरीबडी इज ट्राइंग बेस्ट सबको एडजस्ट करने के लिए. आई सॉ अ लॉट ऑफ प्लेसेस बोथ वर ट्राइंग रियल हार्ड नहीं बोलूँगा मैं, इट वॉज वेरी स्मूथ फॉर देम. stuck between both of them ever? आज तक तो नहीं, आज तक तो नहीं. So it Really that happy on time that. never come कि you know mom का side दूँ या wife का side दूँ, मैं तो फंस गया बीच में. नहीं, लेकिन वो भी क्लियर है, अगर मॉम और इस रिद्धि का साइड लेना होगा तो मॉम का साइड अच्छा वो भी sorted है. सॉर्टेड है. Okay. वो राजभोग करके एक मिठाई होती है जी. जो मारवाड़ी लोग बहुत अच्छे से खिलाते हैं, जी. है ना. तो वो राज जान ले लेती है कायदे से. एंड देवर जान तो लेती है एंड देवर वेरी स्मार्ट, है ना. दे क्या करते थे वो, अब टेबल को फेस करते हुए इंसान खा रहा है, ये पीछे से आ रहा होता है राजभोग वाला, और एकदम से ऐसा लैंड होता है एटम, जैसे एटम बॉम्ब. नहीं प्लेट में तो जाता ही नहीं है वो. सीधे तो आप आइडियली व्हाट हैपेंस, आप चम्मच उठाते हो और जब ये लेवल पे होता है आपका मुंह खुला होता है, ये लेवल पे चम्मच है तो पीछे से हाथ आता था अंदर. एंड दे वर फैंटास्टिक व्हाइल डूइंग दिस. वेन्यू वाले को दूसरी बार राजभोग बनाने पड़े, राइट, और वो बने. और आई रिमेम्बर वो वीडियो भी है शादी का, मेरी फ्रेंड किट्टू वो दौड़ रही है पूरे हॉल में और उसके पीछे 62 इयर्स के अंकल दौड़ रहे हैं राजभोग खिलाने के लिए, बाउल हाथ में और दौड़ रहे हैं. राजभोग वाज हिट हमारी शादी में. लोगों को कुछ और याद ही नहीं है, लोगों को राजभोग याद है बस. तो भावेश के साइड के लोगों को याद है कि कैसे राजभोग खिलाया, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर एक भावेश के हर एक फैमिली मेंबर को 8-9 पीसेस राजभोग के खिलाए हैं. मतलब ऊपर आके लोग ऐसे नंबर गिना, दूर से गिना रहे थे. हमारे फेरे लोग में शादी बैठे में हम ऐसे दिखा रहे हैं लोग. कि मैंने 8 खाए, मैंने 9 खाए. जीजाजी को पहले से पता था, मैंने बता दी थी. उन्होंने रिद्धि ने, थैंक्स टू रिद्धि, उन्होंने पहले बता दी थी. उन्होंने 32 राजभोग खाए क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं खाया. रिद्धि ने बता दी थी तो पहले से उन्होंने खाना नहीं खाया था. सो या इट वाज फन. अब संगीत वाली नाइट, एक रात पहले वो तो बहुत गजब थी. तो उसमें आपने प्रपोज किया एंड एज रिद्धि सेड दैट यू नेवर प्रपोज्ड हर. तो उसके पहले कभी भी ये पूरी कोर्टशिप टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यू सीम टू बी अ लिटिल रोमांटिक एंड शी इज अ सुपर प्रैक्टिकल लेडी, व्हाट आई नो अबाउट हर. सो फिर कभी ऐसा कुछ जहाँ से कुछ ऐसा भाव मिले रिद्धि की तरफ से? Courtship was, I think, a very pathetic period for both of us because हमारा काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि BNI का अप्रूवल तभी आया था. एंड इनफैक्ट हमारी पहले शादी की डेट दिसंबर में निकली थी क्योंकि हम इतने, मतलब मैं इतनी प्रैक्टिकल हो रही हूँ. मैंने बोला कि प्लीज़ थोड़ा सा लेट करते हैं शादी, जनवरी में चैप्टर लॉन्च है, उसके बाद करते हैं, नहीं तो हम कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो हमारे टाइमिंग्स ऐसे थे कि हमें बात करने का भी टाइम नहीं मिलता था. दिन भर वी वर इन वर्क, रात को शादी वादी के काम, और मैं सोती हूँ 10-10:30 बजे, भावेश सोता है 11:30-12 बजे. तो हमें वो कभी टाइम ही नहीं, कोर्टशिप पीरियड का हमारा कुछ भी हमें ध्यान नहीं है. हमने सिर्फ काम किया है और शादी की तैयारी आपका की है. जो प्री वेडिंग शूट है, वो वीडियो जो है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लोगों को बहुत
बड़े जब लोग देखते हैं तो बड़ा लोग इतना enjoy कर रहे थे. I still remember that moment when people were looking at your video and they were laughing, they were having great fun. I'm sure making that video also while you were making, you were having great fun there. Of course, Yes, yes. Of course, yes. To make a video like this, because I've seen couples going, showing up a romantic song playing and उस किस्म का video बनाते हैं. People travel abroad, people go to Goa, people go to Lakshadweep and make videos and something which is people थोड़ा सा दिखाने के लिए how romantic we can show each other. I mean कैसे दिखा सकते हैं हम. आपका तो सीन ही अलग था. आपका तो शुरुआत थी उसमें हुई कि आप दोनों लड़ ही रहे हैं. हाँ मतलब वी वर शोइंग व्हाट हैपेंस बिटवीन टू कपल्स, है ना. हम ऑटो चला रहे हैं, पीछे बैठी हैं, है ना. वो भी अगर आपने फोटो देखा होगा तो जीप से मैं बाहर खींच रहा हूँ, वो भी आपने देखा होगा. सो वी वर लाइक वी वुड वांट टू एंजॉय द वे वी आर. हम जैसे हैं वैसे दिखाना है, कुछ अलग नहीं दिखाना. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट होल फोटो शूट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आज भी झगड़ते हैं और हम ऐसे झगड़ते हैं कि अगर हमें अभी मतलब अगर आप हमें जानते हो या जैसे भैया भी अगर हमारे सामने रहता है, हम दोनों इतना झगड़ेंगे. बेचारा भैया डर जाता है क्या हो गया इन दोनों को, ऐसे क्यों झगड़ रहे. वो उठ के चले जाता है कि ठीक है चलो झगड़ने दो. एंड जैसे ही टॉपिक खत्म हम बैक टू नॉर्मल. हाँ तो हम रमी कप खेल रहे होते हैं. अच्छा. सो ये हाँ मतलब वन थिंग वेरी क्लियर, जो बहुत क्लियर है वो, यू हैव योर ओन ओपिनियंस, आई हैव माई ओन ओपिनियन. जिसको समझ में आ जाए कि हम इस जगह शायद मैं गलत जा रहा हूँ. Does that bother you sometimes, Bhavesh, that Riddhi's decisions or Riddhi's say on anything is very cut to cut. She's on the point. She's very specific. नहीं, क्योंकि मैं अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं धीरे से मना करवा देता हूँ. I have my own way. So you have your own skills जिससे आप रिद्धि को नो से यस पे या मे बी पे ला लेते हो. हाँ मतलब डाउट पे ही लाना होता है. What is that one thing which you think is Riddhi's best thing? I mean, you think that is irreplaceable? Her confidence. बहुत बार तो लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं इसलिए फेल हो रहे होते हैं. एटलीस्ट आई हैव समबडी हु कैन टेक क्विक डिसीजंस. इट्स सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ना कि हम बहुत बार डिले हो जाता है. ये बिजनेस करना है, ये नया बिजनेस करना है कि नहीं करना है, वो सोचते सोचते साल 2 साल निकल जाते हैं. There is a very different expression when Bhavesh is around, and there is a very different expression on your face when he is not around. There is something which changes in you when Bhavesh is around. Do you know that? No, something new. So in a positive way or Positive, definitely. There's a grin or there's a That I know, yes. Like I said कि अगर हमारा झगड़ा भी हुआ हो तो भी मुझे चाहिए ठीक है तुम यहीं बैठो, हम बात नहीं कर रहे, बट जस्ट बी अराउंड, डोंट गो एनीवेयर और शट योरसेल्फ और एनीथिंग लाइक दैट. तो वी आर, आई एम अभी भी ही इज ट्रैवलिंग टुमारो, तो मुझे अभी भी वही लग रहा है कि ओ माय गॉड हाउ विल द नेक्स्ट 6 days गो. सो वो है, यस डेफिनेटली. Bhavesh, because Riddhi is, she's come from a chartered accountant background, you come from an architect background. Then BNI came in life, and then it came while your relation was growing with time, and so was BNI. Chapter launch tha, and सबसे बड़ा chapter, first chapter. It was very crucial moment कि personal and professional दोनों lives का एक बहुत बड़ा mashup बन रहा था. वो कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैनेज नहीं करना पड़ा. अच्छा. पहले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ धीरे धीरे आज भी कोई भी नई चीज़ आ रही होती है, हम स्लोली विद टाइम वी डिफाइन कि इसमें रिद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इसमें मैं बता देता हूँ इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. सो वी हैव क्लियर डिसीजन मेकिंग लाइन्स. जैसे मुझे पता है कि रिद्धि को पता है कि कपड़े लेने गए तो उसके डिसीजन नहीं चलते हैं. आई टेक डिसीजंस फॉर हर कि कौन से कपड़े लेने हैं. सो इवन एवरी पिन का कौन डिसीजन लेगा, इट इज़ वेरी क्लियर. सो डू यू गेट टाइम टू रोमांस? ऑफ कोर्स. हमने सबसे अच्छा क्या किया, वी टुक अ मेंबरशिप ऑफ अ वेरी गुड होटल इन नागपुर, है ना. वो मेंबरशिप लिया ही इसलिए कि हफ्ते में हम एक दिन जाते हैं,
फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं वहाँ जाके और मस्त 3 घंटा वहाँ बैठ के खाना खाते हैं. फूड वी बोथ लव फूड. Yeah. तो वी कनेक्ट विथ फूड ऑल्सो. तो हम बैठते हैं वहाँ, फ़ोन स्विच ऑफ, और हम जो भी हमारे डिस्कशंस हैं जो हम यूजुअल टाइम पे नहीं ले पाते, दैट मेंबरशिप हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट. What's that one thing which you want, one thing you want to change in Bhavesh? What is that? It is something that I like also, but at times थोड़ा irritating हो जाता है कि कभी हम ड्राइव पे हैं या फिर कभी आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड एंड अब नहीं करना मुझे बात या कुछ, बट भावेश इज फुल ऑफ एनर्जी. सो किसी का अगर फोन आया, Bhavesh is always full of energy. ऑलवेज. च्यवनप्राश खाते क्या खाते साहब? मुझे एनर्जी लोगों से आती है. तो मोर आई टॉक टू पीपल आई फील अरे यार और कुछ नया एनर्जी मिला. Yeah. सो जो मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर, एंड ऑफ कोर्स मैंने कभी भावेश को ऐसे बोला भी नहीं है कि बस, जब भी मैंने ऐसे बोला है कि दिस इज़ आवर टाइम, तो ही डजंट पिक अप फोन्स, बट वो मुझे थोड़ा इरिटेट होता है कि अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और भावेश इज टॉकिंग ऑन फोन. एंड भावेश को अगर आपने फ़ोन किया, आपको कोई प्रॉब्लम है, देन ही डजंट केयर 10 मिनट है, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, ही विल लिसन टू यू एनी वे दैट. एंड फिर मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि शायद तुमने किसी को बुलाया ऑफिस में. One thing you want to Riddhi to change in her. What is that? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. Nothing. Do you think she's your soulmate? Of course. You don't have an option now. Yes, of course she's my soulmate. How would you describe the future of Bhavesh and Riddhi? How do you see? I don't know कि मैं इसको कैसे आंसर करूं, लेकिन one thing that I always consider, और मैं खुद को इस पे evaluate भी करते रहता हूँ, am I still grounded? Right? So this is a very frequent question I ask to people very close to me. Riddhi. So I see Bhavesh and me, enjoying our life. Like, अभी जो हमारी ज़िंदगी है वैसे ही, भावेश हैविंग हिज ह्यूमर, एंड थोड़ा बहुत मेरा भी इम्प्रूव हो रहा है उसके साथ. एंड द वे ही इज़ विथ अभियान, always playing and joyful, and always thinking about growth, and growth not just in terms of professional but personal, spiritual growth as well. So just always seeing कि अच्छा हम और कहाँ improve हो सकते हैं. Currently also we do that, but I see us doing that till we die. Do you call each other and while you're hanging up the phone, do you say I love you baby? हाँ, Or बहुत. do you say love you too? मतलब अपन तो बहुत बोलते हैं. अच्छा. हाँ, मतलब ऐसा मैं ऑफिस से बाहर निकला रूम से, फिर ऐसा वापस दरवाज़ा खोल के लव यू, एंड देन आई गो टू माई वर्क. And she smiles. What is the most romantic thing Riddhi has done for you? रोमांटिक में एक ही याद है कि रिद्धि ने बोली कि कौन पहले प्रपोज करेगा, चलो मैं कर लेती हूँ. तो शी प्रपोज मी. Okay. हाँ, हम लोग कार में थे और वो कार की सामने की सीट की छोटी सी जो सामने की जगह होती है वहाँ पे घुटनों में चली गई थी बेचारी. एंड शी प्रपोज मी. I was waiting यार, अब करेगा. तो मैं ही कर छोड़, मैं ही कर लेती हूँ. अब क्योंकि now the child has come, Bhiyan has come. What do you mean by Bhiyan? What's the meaning of that? Bhiyan means trust. Okay, so now Bhiyan has come. अब how are you planning things? अब कैसे plan होता है दिन? Bhiyan के साथ कैसे plan होता है? इवनिंग्स आर विद बिहान. सुबह एक 15-20 मिनट या आधे घंटे का हमारा खुद का स्पेस है जहाँ हम लोग आपस में खेलते हैं. अभी वो 8.5 महीने का है, लेकिन हम हर रोज़ बिहान और मैं उसको सीढ़ी चढ़ना सिखाता हूँ और सीढ़ी उतरना सिखाता हूँ.
मुझे ऐसा लगता है, बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सीढ़ी पे दरवाज़ा लगा लो. मुझे ऐसा लगता है कि वो तो रुकेगा नहीं. ही इज़ इन हिज स्टेज वेयर ही वांट्स टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो या तो उसको सिखा दो कि अगर हम नहीं रहे तो भी सेफली चढ़ ले, सेफली उतर ले. तो मेरा टाइम उसके साथ इन सब छोटी छोटी चीज़ों में जाता है. और शाम में ही इज़ विथ मी. उसको दिन भर किसी के भी चेहरे देख लेगा. इवनिंग का 1-1.5 घंटा हमारा फिक्स है. तो दिस गिव्स मी अ शेड्यूल ऑल्सो कि मुझे 7 बजे 7:30 बजे वट एवर टाइम आई हैव टू रीच बैक होम. Now this is my last thing which I would request you to do, Riddhi, to say a romantic line to Bhavesh. And Bhavesh is really up to it. हाँ, आई एम वेटिंग. So I like your smile, and I just love the way you play with Bhiyan. You make me laugh, and जब भी किसी से झगड़ा होता है तो मेरा किसी और के साथ होता है तो जिस तरीके से तुम मुझे शांत करते हो. एंड ऑल्दो मैं बहुत ही अनरोमांटिक सी हूँ, बहुत नहीं, थोड़ी सी हूँ, थोड़ी ज़्यादा हूँ. But for me it is very very difficult to imagine even a single day, and I know you know that. अगर अभी ध्यान नहीं होता तो I would also have been traveling with you wherever you go. So just be with me by my side always. थैंक यू. यस, आई विल बी. बट एक बात जो भावेश और रिद्धि शायद आज अपने इस इंटरव्यू में हम सबको सिखा गए, वो क्या सिखा गए, या जिन्होंने जो हमको सिखा दिया वो क्या सिखा दिया, कि यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स. जो मिला है आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज शायद दूसरे को नहीं मिला है, और जो दूसरे को भी मिला है उसने उसको लेके भी ग्रेटफुल रहना चाहिए हर किसी में. एंड तब आप बनते हैं एक young, powerful couple. Super. Thank you for giving your time, and you've been one of the most loveliest people I've ever met on the planet. I'm saying it from my heart, and I really, really look up to you, both of you. And I really wish someday you call me, because I call you always. You call me and say Raj, ज़रूरत, तो मैंने कहा राज रात को 3 बजे भी available हो जाए. Thank you for being there, and thank you for being so strong, always there. Thank you. Well, Bhavesh and Riddhi Tehlramani for many are, a BNI couple, a youngest and powerful couple in the town. But for many, they are shoulders on whom people can actually cry. They are people to whom many of them can rely, and one of the most honest people to whom, when you meet them, you learn a lot from them. The Wedlocks ends here, but then the Wedlocks of Bhavesh and Riddhi goes a long way. Have a nice day.